Hello and welcome students to the SRBPS virtual classroom program. I am your biology educator Prerna Rathi. I hope you are all making complete use of our YouTube channel. Now let us come and see what I have got for you today. So here we are with the next chapter of plant physiology, that is mineral nutrition, where we would be learning about various minerals that are used in the normal growth of a plant, how these minerals are absorbed. We would be learning about the importance of these minerals, what are their functions, what are the roles they play, why are they called essential, how they are absorbed and translocated, and finally eventually we'd also be learning about the metabolism of nitrogen, which is a very important plant mineral. Let me introduce the topic to you first. Children, living organisms कंज्यूम मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम काउंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स। ये सब चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट रहती है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए फॉर नॉर्मल ग्रोथ। How do you then define a mineral? A mineral is a chemical element which naturally occurs in the form of inorganic nutrients in the food, soil, and they are essential for the proper functioning of the plant or the animal body. Apart from carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, there are other organic molecules also. These are required for the formation of organic molecules. Now children, अगर हम ये सोचें कि सॉइल में इतने मिनरल्स प्रेजेंट है, चलो हम पता कर लेते हैं कितने मिनरल्स प्रेजेंट हैं और कितने हमें और चाहिए। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एक्सेस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सॉइल, or to make it mineral free if you have to check the deficiency or anything. So what happened in the year 1860, Julius von Sachs, who was a German botanist, he gave a very nice method called hydroponics. उसने क्या किया? Soilless culture invent किया. In the absence of soil, हम क्या कर सकते हैं? Hydroponics की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं to find the concentration, the effect and everything, deficiency, toxicity of every particular mineral, how it allows optimum growth, everything. The concentration required is determined by adding or removing the mineral from the solution. Now as you can see in this particular diagram, children, see, this is a hydroponic system for a plant, for single plant. Through this funnel we add the nutrients how much so ever we want. This is the aerating tube जहाँ से हम enough amount में, abundant amount में oxygen देते हैं, because for respiration that's very important. ये हमारा nutrient solution है। यहाँ एक cotton plug लगा देते हैं so that the oxygen that we are adding should not escape out. Understood children? So this is how hydroponics works. दिस इज़ फॉर लाइक अ सिंगल प्लांट अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑन लार्ज स्केल अगर आप देखना चाहें तो हम लार्ज स्केल पे टमाटो, कुकुम्बर, लेटस, बहुत सारे प्लांट्स, और डेवलप्ड नेशंस में तो इनफैक्ट दिस इज़ बिकम अ वेरी कमर्शियल business. Okay, so see, can you see how hydroponics is used? Various plants are being grown and here is a trough जिसके अंदर continuously हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया जो है सर्कुलेट करते हैं by the help of a pump. ठीक है, ये रिजर्वॉयर है, कंटिन्यूसली एयर सप्लाई रहती है, जो अनयूज्ड है वो वापस आ रहा है और फिर ये वापस सप्लाई हो रहा है. सो इट इज़ कम्प्लीटली साइकिल्ड हियर. सो दैट्स हाउ द प्लांट्स विल absorb whatever they require and they will grow. कैन यू सी हियर टमाटो, सीडलेस कुकुम्बर्स, लेटिस, ये सब तो बहुत कमर्शियली यूज़ किए जा रहे हैं इन इवन इन आवर कंट्री. हाउ डू यू डिसाइड कि ये वाला ये मिनरल जो है एसेंशियल है, नाइट्रोजन एसेंशियल है, कार्बन एसेंशियल है, गोल्ड एसेंशियल नहीं है, गोल्ड नहीं चाहिए प्लांट को? हाउ डू वी डिसाइड दैट? लेट्स नाउ लर्न अबाउट द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स. द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूटली नेसेसरी. उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो बिल्कुल ज़रूरत होनी चाहिए, दैट विदाउट दिस देयर विल बी नो ग्रोथ. इन द एब्सेंस ऑफ दैट एलिमेंट द लाइफ साइकिल मस्ट बी हिंडर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड. द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट ऑल्सो बी स्पेसिफिक. रिप्लेसेबल नहीं होनी चाहिए कि चलो नाइट्रोजन नहीं मिला, इसके जगह थोड़ा सिल्वर डाल देते हैं, काम चल जाएगा. नो, नाइट्रोजन इज एसेंशियल बिकॉज नाइट्रोजन को कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता है. The element must be directly involved in any of the metabolic cycles. वो एक anabolic cycle हो सकती है या catabolic cycle हो सकती है, कोई enzyme का formation हो सकता है, कोई एक metabolite का formation हो सकता है, कुछ भी, लेकिन वो metabolism में directly participate करना चाहिए. Based on the requirement, quantity wise कि कौन ज़्यादा चाहिए कौन कम चाहिए, we've divided them into two categories, that is
the macronutrients and the micro. Macronutrients बच्चे वो होते हैं which are required in a quantity more than 10 millimole per kg of dry matter of the plant. अगर हम 1 kg dry matter लें तो अगर उसमें वो particular mineral nutrient 10 millimole से ज़्यादा present है, that means हमारा nutrient कैसा है बच्चे, macronutrient है. For example, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, magnesium, ये सारे क्या हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. माइक्रो कौन से होते हैं, जो 10 मिलीमोल से कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल. कुछ प्लांट्स के लिए सेलेक्टिवली ओनली इन सम प्लांट्स सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम आर ऑल्सो अब्जॉर्ब्ड. ठीक है, माइक्रो क्वांटिटीज़ में. लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स. हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिए. यहाँ पर फर्स्ट में एलिमेंट का नाम होगा और उसकी अब्जॉर्प्टिव फॉर्म होगी कि वो कैसे अब्जॉर्ब किया जाता है, कौन से रीजन में वो रिक्वायर्ड होता है, क्या फंक्शन वो परफॉर्म करता है, और अगर इस एलिमेंट की डिफिशिएंसी हो जाए तो क्या सिम्टम्स आएंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि इस एलिमेंट की डिफिशिएंसी हो गई है. अंडरस्टूड. लेट अस now start with nitrogen. Children, nitrogen is absorbed in the form of NO2 negative, NO3 negative and NH4 positive. Ammonium ion, nitrates and nitrites की फॉर्म में. मेरिस्टेमेटिक रीजन में ज़्यादा चाहिए होता है बिकॉज ये DNA फॉर्मेशन में हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है. ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वाइटामिन्स, हॉर्मोन्स. अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो देयर विल बी क्लोरोसिस. द वेनलेट्स विल टर्न येलो, स्टंटेड ग्रोथ रहेगी, लेटरल बड्स डॉर्मेंट हो जाएंगी, फ्लावरिंग लेट हो जाएगी, पर्पल कलर की शूट एक्सिस बन जाएगी, ग्रेन्स जो होंगी वो ऐसे रिंकल्ड हो जाएंगी, और माइटोसिस यानी जो सेल डिविजन की प्रोसेस है बेटा वो हिंडर हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी. देन वी हैव फॉस्फोरस. इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन 2 फॉर्म्स, फॉस्फेट आयंस H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव. यंगर टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट रहता है और जो ओल्डर टिश्यूज़ होते हैं उनसे हम इसको ले लेते हैं. ठीक है, बिकॉज यंगर टिश्यूज़ अगेन मेरिस्टेमेटिक रीजन में अगेन शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनानी है DNA की, तो उसमें चाहिए होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स है जहाँ फॉस्फोराइलेशन होता है ATP बनाने के लिए, NADP बनाने के लिए, वहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है. इसकी डिफिशिएंसी से सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस जो है वो डिले हो जाती है, पर्पल कलर के स्पॉट्स अपीयर होते हैं, लीव्स जो होती हैं वो डार्क कलर की हो जाती हैं, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड फ्लावर बड्स, बिफोर दे इवन मैच्योर दे फॉल डाउन. ठीक है. Now next element that we have to discuss is potassium. Potassium is again present in the it is present in the form it is present in the meristematic tissues. K positive positive cation की फॉर्म में absorb होता है. Anion cation balance के लिए बहुत important होता है, स्टोमाटा की ओपनिंग क्लोजिंग को डिटरमाइन करता है. इसकी डेफिशिएंसी से भी क्लोरोसिस हो जाता है. लीफ टिप्स जो होती हैं, सपोज ये आपकी लीफ है, जिसका ये टिप वाला रीजन होता है बेटा, ये ब्राउन हो जाता है, स्कॉच्ड, जला जला हो जाता है. एपिकल डोमिनेंस जो है वो लूज़ कर देता है, कैम्बियल एक्टिविटी यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा, प्लास्टिड्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे. ठीक है, सो ऑल दिस विल हैपन. सो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा बेटा इन केस देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम. कैल्शियम इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Ca2 पॉजिटिव डाइवेलेंट कैटायंस की फॉर्म में, मेरिस्टेमेटिक रीजन में होता है. माइटोटिक स्पिंडल डिवीजन के वक्त माइटोटिक स्पिंडल बनाने में हेल्प करता है. नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स कंट्रोल करता है. मेम्ब्रेन की पोरोसिटी जो होती है वो कैल्शियम डाइवेलेंट आयन जो है वो कंट्रोल करता है. ठीक है, एंड सेल वॉल सिंथेसाइज करने में रिस्पॉन्सिबल है. मिडिल लैमेला में कैल्शियम पेक्टेट की फॉर्म में पाया जाता है. नेक्रोसिस यानी सेल डेथ स्टंटेड ग्रोथ कॉज कर देता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो. इफ दैट इज़ वाई दे आर एसेंशियल देन वी हैव मैग्नीशियम. मैग्नीशियम कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है. Mg2 पॉजिटिव डाइवेलेंट कैटायन की फॉर्म में अब्जॉर्ब किया जाता है. ये भी एजिंग लीव से विड्रॉ कर लिया जाता है और एक्टिवली डिवाइडिंग पार्ट्स को दे दिया जाता है. इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पोर्फायरिन रिंग में ये प्रेजेंट रहता है. राइबोसोम्स बनाने में, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है. अगेन क्लोरोसिस. क्लोरेटिक वेन्स यानी येलो कलर की वेन्स हो जाती है. नेक्रोटिक, मरे हुए बिल्कुल डेड पर्पल कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं. प्री मैच्योर लीफ फॉल, एब्सिशन, रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट विदाउट बीइंग मैच्योर. नेक्स्ट वी हैव सल्फर. सल्फर को हम सल्फेट SO4 नेगेटिव की फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं. प्लांट्स एक्चुअली यंग लीव्स में प्रेजेंट होता है, रूट टिप्स में प्रेजेंट होता है.
It's responsible for the synthesis of synthine and methionine. ये अमाइनो एसिड्स बनाने के काम आता है. फेरिडॉक्सिन बनाने के काम आता है. मेजर वाइटामिन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाने में काम आता है. क्लोरोसिस कॉज कर देता है अगर डिफिशिएंसी हो, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती. एंथोसायनिन जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, ब्लू कलर के, पर्पलिश ब्लू कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं. रूट नोड्यूल फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देता है. देन वी हैव आयन विच इज़ अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Fe3 पॉजिटिव. थ्रू आउट द प्लांट बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है. फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा कैटलेज एक्टिवेटर रहता है. ये एंजाइम बनाने में हेल्प करता है. डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस के सिम्टम्स शो करता है. Next we have manganese, Mn2 positive, which is found in seeds and leaves. Activation of carboxylase enzyme और water के breakdown के लिए responsible होता है. Chlorosis cause कर देता है deficiency से. Zinc absorbed in the form of Zn2 positive, present in the entire body, activates carboxylases and oxygen synthesis में help करता है. Again chlorosis of the intervenal area cause कर देता है. कॉपर भी absorb in plants absorb in the form of Cu2 positive throughout the plant body चाहिए होता है. मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. रेडॉक्स रिएक्शन का ये एक कैटलिस्ट रहता है. नेक्रोसिस हो जाता है अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो. फाइन. देन वी हैव बोरोन विच इज absorbed in the form of borate. आयंस BO3 3 नेगेटिव एंड B4O7 नेगेटिव. सीड्स और लीव्स में अच्छे से प्रेजेंट होता है. अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. पॉलन जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. सो बेसिकली द एक्चुअल जो डिविजन है, बोरोन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए बट अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो इट विल इनहिबिट द प्रॉपर ग्रोथ. इट इज़ डेफिशिएंसी कैन कॉज द डेथ ऑफ द रूट एंड शूट टिप्स. लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, एब्सेशन ऑफ फ्लावर्स कॉज कर देता है. Next we have molybdenum which is absorbed in the form of molybdate. Ions throughout the plant present होता है. MO3 3 positive की फॉर्म में रूट्स में absorb किया जाता है. It is a very important constituent of the enzyme nitrogenase, जिसका फंक्शन हम इसी चैप्टर में एंड में करेंगे. एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये. इट कॉजेज रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ एंड इंटरवेनल क्लोरोसिस अगर ये प्रॉपर क्वांटिटी में ना प्रेजेंट हो. देन वी हैव क्लोरीन विच इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन थ्रू आउट द प्लांट बॉडी. एनायन कैटायन बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट फोटोलिसिस ऑफ वाटर, H2O का ब्रेकडाउन इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन कराता है. स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, लीव्स विल्टिंग हो जाएंगी, रिड्यूस्ड फ्रूटिंग हो जाएगी अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो. देन व्हाट डू यू मीन बाय टॉक्सिसिटी? ये तो देखो एक हर एक एलिमेंट की एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होती है कि मिनिमम इतना तो हमें चाहिए. अगर वो उससे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उससे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी. लेकिन अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट है तो उससे क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी. सो टॉक्सिसिटी इज द फिनोमेना वेयर एक्सेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट विच वुड लीड टू टॉक्सिसिटी, deficiency of other elements. I hope you have all understood what I taught you and you are making complete use of this YouTube channel. Until next time, take care, study hard. Goodbye, children.